How are you all? So today the topic is communication. We'll be speaking about communication, and we all know the importance of communication in this age. Why do we need to communicate? First we should understand why do we need to communicate and what is the actual meaning of communication. Communication means exchanging verbal and non-verbal messages and cues between people, and we need communication to establish and modify relationships. We need communication to negotiate deals in our favor. We need communication to understand the situation in the right perspective. We need communication to express our unique identity and live our purpose in this world. This is a 16-petal blue color chakra ruled by Guru, ruled by Brihaspati, who is also called Deva Guru. He is considered the personification of piety and religion. He is the god of wisdom and eloquence. When we say Brihaspati God Puja, Brihaspati, Guru, it is him. And basically, whomever you consider Guru, basically it is your Uppu Guru. All the unfulfilled desires that I have come in this world, I have to do this, I want to earn money, I want to be famous, I want to learn this, I want to go here, all the desires of the five senses, whatever you have come to do in this birth is it is stored in your body as That is why here, below your ribcage is all Your Mooladhara, your Swadhisthana, your Manipur is So when we say you make those karmas rise up. Then comes You raise the it becomes reverberates in the heart and the throat. Basically, it gives you the energy of Vishnu. Vishnu's consort is Lakshmi. She gives you the money, the abundance, the material, the power, the man, the men, the horses. So, when we say, we get that energy of Lakshmi to fulfill it. Then comes Ma. Because after here, you have to understand, once it is fulfilled, we have to be ready to drop it also. Many times, so many of our desires have already been fulfilled long back. But we are not even being able to drop it. We are tired of the same cycle. Earning money, going for success, running after certain things, running after certain pleasures. But we don't realize how to drop it. And we are also sick of that cycle, round. Then we need the Mahesh. So we say Ma. So Ma is the tail. And then we say Ma and open our mouth, it becomes a Chandra Bindu. Ma. So basically we say I am fulfilled and now I am ready to accomplish it. Finished. I am ready to give it to the world. I am ready to surrender. I am ready to give it up. So this is a cycle. That is why every mantra starts with Om. Every mantra. You want to invoke Ganesh? Say Om. You want to invoke Mahalakshmi? Say Om. You want to fulfill any project in your life? You make an Om there. You chant Om. Basically, it gives you the energy to start, energy to fulfill, and energy to give it to the world. And not only that, for many of our work is done, we don't know, it helps us to surrender. Many of our we are not fulfilled, it helps us to realize we are fulfilled. Today, if you have problems in Vishuddha Chakra, understand, probably you are not honoring your words. You are not honoring. You are telling somebody, yes, I will do this. I will come on time. I am there for you. But if you are going back on your words, however insignificant that honor is, however, it could be arriving on time. It could be helping somebody with very small thing. And however
insignificant that person is in your life, you have to honor. Even if it is a child, you have kept your promise to your child, you have to keep it to your child. You have kept it to your junior. You have to honor. If you don't honor, it hurts your soul. You lose confidence in yourself. Maybe the other person may not even realize. But if you don't honor the truth, honor your commitment, it hurts your soul. You lose self-confidence. So faith is very, very important part of the विशुद्ध चक्र. जब हमारे पास enough wisdom होता है और जब हम खुद के साथ connected होते हैं, we know what we want. Only that increases our willpower. Willpower is something very important. And willpower कब आता है? जब हम खुद से connected होते हैं, हमें खुद पे faith होता है, हमारा wisdom developed होता है. तब हम इजीली गिव नहीं करते, हम प्रॉपर लॉजिक देते हैं, आर्ग्यू करते हैं, हमें खुद पे कॉन्फिडेंस होता है, हमें खुद के इंटेलिजेंस पे कॉन्फिडेंस होता है, तो हम नेगोशिएशन में किसी और को जीतने नहीं देते अनलेस इट इज वैलिड, अनलेस वो हमें कन्विंस कर दे. सो विल पावर इज अ एस्पेक्ट ऑफ दिस चक्र एंड विल पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि आज अगर आपने किसी को अपना वर्ड दे दिया है, अपना कमिटमेंट दे दिया है, मैं करूंगा, आपके अंदर इतना स्ट्रेंथ एंड करेज होना चाहिए, आप वो ऑनर करेंगे. यू विल लिव दैट कमिटमेंट. दैट इज ऑल्सो व्हाई यू नीड विल पावर. हमने बोल तो दिया बहुत इजीली, हो जाएगा सर, काम हो जाएगा, पर उसके लिए यू नीड दैट स्ट्रेंथ एंड दैट विल पावर कि आई विल ऑनर दोज वर्ड्स फॉर माई सेल्फ एंड फॉर द अदर पर्सन. So basically it is ruled by Jupiter. Action of speaking as well as hearing are in the Vishuddha Chakra, and it is like a vacuum because everything is created in vacuum. Basically it deals with communication. And what happens when you get blockage in the Vishuddha Chakra? Number one, why do we get blockage? And when we get blockage, what happens? क्यों ब्लॉक हो जाता है? अभी तक हमने बात की है कि विशुद्ध चक्र क्या क्या करता है. आप कहोगे सुनने में तो बहुत अच्छा है, पर मैं नहीं कर पाता हूँ, मैं नहीं एक्सप्रेस कर पाता हूँ, मेरे अंदर बहुत इनहिबिशंस हैं, इतना सारा मुझे बोलना होता है, पर जब जाके खोल देता हूँ तो मुंह ही नहीं खुलता है, सारी बात यहाँ तक रह जाती है, खुल ही नहीं पाता है. आज हम सब ये खोलने वाले हैं. सो जब ब्लॉकेज होता है तो क्या होता है? बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है, हेल्पलेसनेस होती है, हमारी क्रिएटिविटी बहुत कम फील होती है, और इसके कारण हमारा करियर ग्रोथ भी कम होता है. जब हम एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते तो लोगों को क्या पता कि आप अंदर से हीरे हो कि कोयला हो कि क्या हो. हमें एक्सप्रेस तो करना पड़ेगा ना कि आप क्या हो. और एक्सप्रेस, एज आई सेड, इट इज नॉट नेसेसरी वर्बल. एक्सप्रेशन शुड ऑल्सो बी बाय राइटिंग, by your body language. तो बोलना तो पड़ेगा ना, तो ये बोलने का बैलेंस पता होना चाहिए, कितना बोलना है. बहुत ज्यादा प्रेस भी होगी तो लोग कहेंगे बहुत बोलता है, बोलोगे नहीं तो उनको क्या पता कौन हो. तो आपको एक ट्राई करना चाहिए बैलेंस का, जिसमें आप अपने कुछ शब्दों से आप बता सकते हो कि मैं कौन सी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं कहाँ से आता हूँ, मेरा क्या एजुकेशन है. तो बेसिकली आप देखोगे वो कह देंगे कि जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, जब मैं पढ़ाई कर रहा था, जब मैं ये कर रहा था, तो वो कुछ ना कुछ वे में कन्वे करते हैं. सो यू हैव टू कन्वे, यू हैव टू एक्सप्रेस. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो बेसिकली इफ यू डोंट एक्सप्रेस, देयर इज मिसट्रस्ट एंड देयर इज डाउट. फिजिकली ये चक्र जो है ये आपके लंग्स को गवर्न करता है. तो पर्सन को हमेशा बार बार खांसी जुकाम होती है, वो खांसते ही रहता है, हल्का सा ठसका लगा ही रहता है. थायराइड हो सकता है, हाइपर थायराइड, हाइपोथायराइड, बाल गिरते हैं, स्किन ड्राई होती है, बिकॉज ये चक्र स्किन को कवर करता है. स्किन, आज अगर हेयर फॉल की प्रॉब्लम है मतलब विशुद्ध चक्र की प्रॉब्लम. सो बेसिकली सोर थ्रोट, इंसोम्निया, थ्रोट इन्फेक्शंस एक्सेट्रा ऑल हैपन बिकॉज ऑफ विशुद्ध चक्र. Now, let us understand why the chakra gets
blocked. First, jealousy, comparison. सबसे पहला रीजन है विशुद्ध चक्र क्यों ब्लॉक होता है, क्योंकि हमारी आदत बन जाती है कि हम कंटिन्यूसली दूसरे को देख रहे होते हैं कि दूसरे के थाली में मेरे से ज्यादा घी है नहीं, उसका घर बेटर है, उसको चीजें बहुत इजीली मिल जाती है, वो बिना मेहनत करके भी आगे बढ़ जाता है. You know, so we have problem that other person has got a better car, better thing, better success, better luck than us. और जेलसी से बहुत नुकसान होते हैं. जब तक हम रियलाइज नहीं करेंगे, हम उस मोड में रहेंगे, हम बार बार देखते रहेंगे. जेलसी से देखिए क्या क्या नुकसान होते हैं. नंबर 1, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, डाउट. हमें खुद पे डाउट होने लग जाता है, भगवान पे डाउट होने लग जाता है, कुदरत पे डाउट होने लग जाता है, मिसट्रस्ट होने लग जाता है दूसरों के ऊपर. एंड दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प, बिकॉज बाय लॉ ऑफ अट्रैक्शन इट इज अगेन गोइंग टू कम बैक टू अस. When we feel low about ourselves, we start having lessons जिसमें more and more we feel low about ourselves. तो सबसे पहले तो low self confidence आ जाता है. Second, कोई भी चीज जो हमें दर्द दे रही है वो हमारी जिंदगी में कैसे आ सकती है. आज अगर किसी को सक्सेस मिली है और हमारा दिल जल रहा है, वो हमें कैसे मिल सकता है. बाय लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो ही चीज हमारी जिंदगी से भी चली जाती है. तो आप देखो कि जो लोग जेलस होते हैं वो हमेशा एक पर्टिकुलर लेवल पे ही रहते हैं. दे आर लाइक कूक बंदूक, सब एक दूसरे को खींचते रहते हैं नीचे. चल तू भी वेल में आ जा, तू भी बाहर मत जा वेल के, हम सब वेल में मजा करेंगे. तो जो जेलस रहते हैं वो एक दूसरे को नीचे खींचते हैं और उस चक्कर में उनकी सारी एनर्जी नीचे खींचने में चली जाती है, वो खुद भी आगे नहीं बढ़ते. सो अंडरस्टैंड कि जेलसी करने से जो हमारे मन में जो पेनफुल वाइब्रेशन आते हैं वो कुदरत को कन्वे करते हैं कि मुझे ये चीज अपनी जिंदगी में नहीं चाहिए. दैट इज द वर्स्ट. हम अपनी जिंदगी में वो सक्सेस, वो पैसा, वो शोहरत, वो अचीवमेंट अट्रैक्ट नहीं करते हैं. आज किसी और के बच्चे को सक्सेस मिली और हमारा दिल जला, हमारे बच्चे को सक्सेस नहीं मिलेगी. आज किसी को प्रमोशन मिला और मेरा दिल जला, मुझे प्रमोशन नहीं मिलेगी. आज किसी के घर में नई गाड़ी आई और मेरा दिल जला, मेरे पास नई गाड़ी नहीं आएगी. You have to realize. प्रे करो भगवान सबको मिले. ये नहीं कि बाकी लोग फेल होते हैं, मेरा बच्चा 95, नो, उसे कभी नहीं मिलेगा. प्रे करो भगवान सबको 95 मिले, सबको प्रमोशन मिले, मुझे तो मिले ही मिले. जब हम सबके लिए दुआ करते हैं तो वो एनर्जी हमारे पास भी आती है. सो इसको ट्रांसफॉर्म करना शुरू करो. इंस्पिरेशन, स्टार्ट गेटिंग इंस्पायर्ड. सो बेसिकली वी हैव अ लॉट ऑफ फियर ऑफ स्पीकिंग, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारा फियर है कि हमारे बोलने से कोई दूसरे को हर्ट तो नहीं हो जाएगा, वो दूसरा पर्सन बुरा ना मान जाए, झगड़े ना शुरू हो जाए. तो हम लोग क्या करते हैं घर में, वी ब्रेक कम्युनिकेशन. हम बस फॉर्मेलिटी की तरह बात करते हैं ऑफिस में, घर में, पर हम एक्चुअली कम्युनिकेट नहीं करते. पर इसका नुकसान क्या होता है? व्हाट इज द बैड इफेक्ट ऑफ दिस? तो आज अगर आप अपनी आवाज को दबाते हैं और कोई चीज ऊपर आ रही है और उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, उसका नुकसान होगा, आपको भी होगा, आपके बॉडी लैंग्वेज में होगा. और फिर आप जब उससे पर्सन से नॉर्मल बात भी करेंगे, आपकी नॉर्मल बात भी काफी कड़वी सी. हम वो बात तो नहीं कह रहे हैं, पर हमारे बातों में भी वो कड़वापन आएगा. और मेन इसका नुकसान है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगी. हमको सक्सेस मिलने का चांस तो थोड़ा बहुत था, वो भी चला गया. तो ये डर का क्या मीनिंग है? आप सोचिए किसी बोलने से कोई रिलेशनशिप टूटती नहीं, इतनी अच्छी थोड़ी होती है रिलेशनशिप्स. ये जो फियर है कि एक बोलने से रिलेशनशिप टूट जाएगी, वो मेरे बारे में बुरा मान जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे, डिबेट्स हो जाएंगे, ये एक्चुअली आपके मन का केवल डर है. इट इज जस्ट अ फियर ऑफ द माइंड. तो हम बहुत लोग हैं जब हम लोगों के साथ प्रॉपर रिलेशनशिप नहीं बना पाते, ट्रस्ट वाले. जब तक ट्रस्ट नहीं होगा, फेथ नहीं होगा, वो हमारी बात कैसे सुनेगा? हाउ विल एनी पर्सन लिसन टू अस जब तक देयर इज नो ट्रस्ट एंड देयर इज नो फेथ? Yes or no? So we have to learn the lessons of making effective partnerships. आप जो कम्युनिकेट करते हो, आप किसी स्ट्रेंजर से कम्युनिकेट करते हो कि कोई
पार्टनरशिप के साथ कम्युनिकेट करते हो, जस्ट विद द पार्टनर। कम्युनिकेशन रोड साइड में किसी के साथ कम्युनिकेशन नॉट कम्युनिकेशन। So communication is only done with somebody with whom you have a relationship, yes or no? Because you have a relationship, you have to trust. आज अगर ऑफिस में आप कलीग्स के साथ काम कर रहे हो, you have to trust. आज आपकी फैमिली में ब्रदर सिस्टर हैं, पेरेंट्स हैं, रिलेटिव्स हैं, you have to trust because it's a union. It has been sent to you by the divine. So trust is something जो आपको अनकंडीशनली होना है। Communication is two-way. We have to first understand the background of the other person. वो कहाँ से आ रहा है, उसका क्या बैकग्राउंड है, उसका क्या लेवल है, उसकी क्या अपब्रिंगिंग है, उसका क्या सोच है, वो क्या चीज को इम्पोर्टेंट समझता है, क्या चीज को नहीं समझता है। आज जो चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है आपके जूनियर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रॉब्लली जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है आपके बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आप चाहते हो आपका बच्चा बस पढ़ाई करे और अच्छे मार्क्स लाए, इट माइट नॉट बी इम्पोर्टेंट फॉर हिम। उसको फ्रेंड्स हैं, उसकी गेम्स हैं, उसकी हॉबीज हैं। सो नॉट नेसेसरी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है आपके स्पाउस के लिए इम्पोर्टेंट है। शी माइट थिंक स्पेंडिंग टाइम विद हर फैमिली इज मोर इम्पोर्टेंट। शी माइट नॉट थिंक कि डूइंग समथिंग फॉर द हाउस इज इम्पोर्टेंट। ये उसकी प्रायोरिटी है। उसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ द पर्सन, कि वो क्या चीज को इंपॉर्टेंट समझता है। पहले बैकग्राउंड तो समझो, वो कहां से आ रहा है। Then you have to communicate as per the level of that person. खुद की कम्युनिकेशन तो रेस्पेक्ट करनी है, ये आपका बर्थ राइट है। दूसरे की बात सुनना को भी रेस्पेक्ट करना 100% उतना ही इक्वल है। You have to honor the communication of others. Today, realization of your right to express and realization of your duty to honor the communication of others opens up your throat chakra. And even consciousness wants you to open these chakras. Only then you will completely live your human experience. To open up these, consciousness has given you many different ways. आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप हम मंत्र की चांटिंग कर सकते हो, आप रुद्राक्ष और जेमस्टोन्स पहन सकते हो। सो अंडरस्टैंड कि ये जो नेगेटिव इमोशंस है, to keep that in check is very important. आज हम चाहते हैं कि वो हमें बताए कि why that person did this to us. It is very important for us to know why we did not get our due, why this person behaved the way he did. Whether it is your colleague, whether it is your family person, whether it is your dear friend, whether it's a supplier, हमारे अंदर है, we want to know, we want to communicate. पर सबसे पहले जो हमारे अंदर की जो रेज, एंगर, गुस्सा भरा हुआ है, उसको इकट्ठा करो और फेंको और फिर बात करो। Okay? So we end the session for this. Okay? And thank you so much for joining me on this Sunday.